किसने लिखी थी? हेमचंद्राचार्य, विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकीज in Gujarat. The Kumarpal was the king of one of the king of Gujarat. Next is grammar book. The grammar book Siddhim Shabdanushasan. Siddhim Shabdanushasan, which is the grammar book. Okay, जिसमें क्या होता है? जिसमें नेम आता है सिद्धराज जयशी एंड हेमचंद्राचार्य को associated with this book. ये दोनों ही associated with this book, the Shabdanushasana. Okay, but not only the poetry, but plays जो होती है वो also written during their time. जैसे कि भावभूति है, जैसे कि भावभूति wrote the उत्तरम चरिता. भावभूति wrote the उत्तरम चरिता and पंडित नारायण वो also wrote हितोपदेश. ओके, एंड जो पंचतंत्र है तो बहुत ही कलेक्टिव स्टोरीज जो होती है विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन पंचतंत्र. डिफरेंट कलेक्टिव स्टोरीज ऑल्सो मेंशन इन दिस पंचतंत्र. ओके, सो दिस इज द literature which is also a major part during the time of medieval age, because various literature was written by different kings in many languages like Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu etc. Okay, तो जैसे कि लिटरेचर है, पोएट्रीज है, बायोग्राफी है, ग्रामर बुक ऑल्सो देयर. नॉट ओनली पोएट्री बट द प्लेज वर ऑल्सो देयर. सो दीज आर ऑल द लिटरेचर वर्क ड्यूरिंग द main literature work during the time of medieval age. Okay, next is, okay, so now let's talk about the architecture of India, architecture of the medieval age. So during their time the kings जो होते थे they were so interested in building different kinds of artistic and very beautiful temples and structures. तो जो किंग्स होते हैं ना, अलग अलग डायनास्टीज की जो आर्किटेक्चर सिस्टम्स होते, आर्किटेक्चर जो स्टाइल्स होते हैं विच इज ऑल्सो डिफरेंट. ओके, अलग अलग डायनास्टीज की जो आर्किटेक्चर सिस्टम होते हैं वो भी डिफरेंट थी. तो जो अगर इफ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस किंग, एशियन किंग, सो मिडिवल एज में, तो दे आर सो lovers of architecture and different kinds of so beautifully different kinds of designs and architectures styles were there in their time. So many temples जो अभी है, many temples है, fort and palaces are the example of that architecture that you can see even nowadays also in some areas. Okay, जिसमें there are some famous temples which is built by and the famous by the architecture, okay, which is belong to a medieval age. So one of them was Khajuraho temple in Madhya Pradesh. तो जो खजुराहो के temples है which is now located in Madhya Pradesh, which is the great temples or which is famous for his styles of architecture. Okay, other temple is the Puri temple which is of the Jagannath Puri. जगन्नाथ पुरी का जो पुरी टेम्पल है that is which is also famous. Okay, now if we talk about the sun temple, so there are many sun temples are located in India, but the sun temple of Konark, जो कोणार्क का sun temple है which is built with the great fineness. Okay, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में स्ट्रक्चर किया है कि उसमें क्या होती है, जो चैरियट होते हैं वो ड्रिवन बाय द 7 horses. ओके, उसका स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर का उसका स्ट्रक्चर है, इसका कि जो चैरियट होता है वो 7 हॉर्सेस से रन होता है. ओके, हम लोग उसे कह सकते हैं कि रथ है जो एक चैरियट चलाता है बाय द 7 horses. ओके, तो पूरा स्ट्रक्चर एक रथ जैसा है. नेक्स्ट इज अमंग सम सन टेम्पल्स. एज आई सेड देयर आर मेनी सन टेम्पल्स आर देयर. तो अमंग देम द टेम्पल ऑफ इंडिया, among the sun temples of India, the Marthan temple of Kashmir, which is located in Kashmir. Kashmir में जो टेम्पल है Marthan temple, I am going to show the picture of this also.
and the Modhera temple which is located in Gujarat, जो गुजरात में है, which is very famous as a sun temple. उसकी जो architecture है, उसकी designs है, and the structure, the way they have built this temple, which is very great. But ये जो गुजरात में the Modhera temple है in गुजरात, its structure was so beautifully they were structured. उसमें क्या होता है कि first sun rays directly fall on the idol. ओके जो सन का फॉल, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से किया है कि जो सन रेज यानी कि जो फर्स्ट सन रेज होती है वो डायरेक्टली आइडियल पे ही पड़ती है. ओके दैट इज व्हाई विच इज द वेरी फेमस मोढेरा टेम्पल. ओके सो देयर आर मेनी केव्स आर आल्सो देयर जिसमें ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है एंड टेम्पल्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स है, पेंटिंग्स है ऑफ लॉर्ड्स, डिफरेंट लॉर्ड्स. तो एलोरा केव विच इज लोकेटेड इन डेक्कन प्लेटो रीजन, जो उसमें काफी सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स वर देयर, ब्यूटीफुली पेंटेड बाय द ग्रेट आर्टिस्ट ड्यूरिंग देयर टाइम. बट वन ऑफ देम वाज कैलाश टेम्पल वाज वेरी फेमस. नाउ अदर जो है एलिफेंटा केव्स वो आल्सो फेमस. बट इन एलिफेंटा केव में अगर कुछ मेजर बहुत ही अच्छा है तो दैट इज द थ्री फेस ऑफ लॉर्ड शिवा. वहां पे देयर वाज अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉर्ड शिवा which has three faces. कितने हैं? 3 faces. Now Meenakshi temple in Madurai. Meenakshi temple in Madurai. This is also famous temple. And temple of South India. जिसमें जितने भी temples of South India में these are famous for their gateways, which is called Gopurams. जिसको क्या बोलते हैं? Gopuram. Okay. These are the temples of South India were famous because of their gateways, and the gateways are called Gopurams. Okay, so because of this kind of structure and beautifulness were also there, and because of that many foreign invaders जो है उसने काफी सारे यहाँ पर आते थे फॉर द लूटने के लिए आते थे टेम्पल्स को, जिसमें सोमनाथ टेम्पल विच इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि जो ये फॉरेन से जो इन्वेडर्स होते काफी टाइम जो सोमनाथ टेम्पल्स पे अटैक हुआ है. ओके सोमनाथ टेम्पल जो है उसको लूटने के लिए काफी बार अटैक हुआ है, लेकिन जो हमारे ग्रेट वॉरियर होते हैं दे हैव प्रोटेक्टेड आवर सोमनाथ टेम्पल्स. सो वन ऑफ देम वो वीर हमीर जी गोहिल. अगर आप सोमनाथ जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो चौक है वहाँ पर उसका स्कल्पचर है, वहाँ पर उसका स्टेच्यू द ग्रेट हॉर्स है, उसमें वीर हमीर जी गोहिल है जिसने क्या किया था कि सोमनाथ टेम्पल को बचाने के लिए खुद की क्या दी थी, लड़ते लड़ते मर गए थे जो सोमनाथ टेम्पल को बचाने के लिए. ओके सो वैसे अदर काफी वॉरियर्स है जिसने सोमनाथ टेम्पल्स को बचाया है. क्लियर? So this is the architecture of India. So we have talked about we have talked about the previous topic which is related to that कि काफी बार सोमनाथ टेम्पल पे क्या हुआ था, अटैक हुआ था by the foreign invaders. Okay, so Muhammad Ghazni was one of them. Muhammad Ghazni was one of them. Okay, the Rajput जो है which is famous for their valor and sacrifice. Okay, their Rajput was always famous for their valor and sacrifice. Okay, the beautiful, they always lover and they always love for their construction, and they construct many beautiful temples and all that things. Okay, तो उसकी वजह से क्या होते थे, उसके स्ट्रक्चर से इतने प्रभावित होके जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो यहाँ पर आते थे टू लूट देम, तो उसको लूटने के लिए यहाँ पर आते हैं. तो मोहम्मद गाजनी was one of them and he was the king of Ghazni, the king of Ghazna. Okay, he attacked India many times between the 1000 CE to 1075 CE. ये टाइम के दरमियान उसके बीच में he attacked many times in India, not to rule but to loot. लूट के लिए काफी बार इंडिया में he had attacked India. They continued attack India क्योंकि वो काफी बार डिफीटेड हुआ इंडिया के लीडर से, बट लेकिन फिर भी कंटिन्यूड द अटैक ओवर इंडिया. ओके, मेनली वन ऑफ देम वन अटैक वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुजरात वाज अंडर भीमदेव सोलंकी's रूल.
एक जब अटैक हुआ था, बिकॉज सोमनाथ टेम्पल जो है उसमें काफ़ी बार मोहम्मद जो गाजनी है उसने अटैक किया था ऑन द सोमनाथ टेम्पल में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ही वॉजंट सक्सेसफुल इन दैट। बट इफ वी टॉक अबाउट वन अटैक, जब गुजरात है वॉज अंडर द रूल ऑफ भीमदेव सोलंकी, भीमदेव सोलंकी के रूल में था, एंड भीमदेव सोलंकी वो ब्रेवली बैटल विद Muhammad Ghazni, and many people and leaders who also joined Bhimdev to safeguard and to protect the Somnath temple. Okay, now because let's talk about the change of power at Delhi. Change of power at Delhi. Now after the Muhammad Ghazni के बाद उसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद the leaders started weighing for throne. ओके, उसके बाद उसके जो लीडर्स होते वो थ्रोन के लिए थ्रोन के लिए झगड़ने लगे, लेकिन राजपूत did not take any advantage of the weakness of that. राजपूत जो है उसने उसकी वीकनेस का फायदा नहीं उठाया। एंड उसके बाद मोहम्मद गाजनी के बाद जो शहाबुद्दीन गोरी है, he established the strong rule in Ghazna, यानी कि मोहम्मद गाजनी के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आया गाजना पे तो he was a Shahabuddin Gori. The Shahabuddin Gori was the strong ruler after the Muhammad Ghazni. And he also attacked India many times. But this time जो मोहम्मद गाजनी है he attacked India for the loot. But ये जो शहाबुद्दीन गोरी है ही इज नॉट अटैक फॉर द लूट बट फॉर द रूल, वो उसको वहां पर रूल करने के लिए काफी उसका जो इंटेंशन था वॉज टू रूल देम, ओके, टू कैप्चर दैट लैंड। बट वंस ही अटैक्ड ऑन अनहिलवाड़ा वेयर द क्वीन नायका देवी वॉज द रूलर, लेकिन क्वीन नायका देवी है वो उससे क्या हो गया, डिफीट हो गया। क्वीन नायका देवी के साथ उसकी जो बैटल हुई थी he was not successful in that, okay, he was defeated by Queen Naika Devi of Anhilwada Patan, and because of that 12 years तक उसने फिर अटैक किया नहीं, he didn't attack the even through 12 years. Now then after that he then attacked Delhi. फिर उसने क्या किया, he attacked now not अनहिलवाड़ा पाटन में नहीं, सीधा दिल्ली में ही अटैक। Okay, now during their time there was a rule of पृथ्वीराज चौहान, the famous पृथ्वीराज चौहान जो जिसके बारे में आप सभी जानते ही हो। तो he fought bravely but without prior preparation and didn't took any help from other king. Okay, जो वहां पर जो पृथ्वीराज चौहान का रोल था, तो पृथ्वीराज चौहान ने काफी ब्रेवली उसके साथ बैटल की, ही बैटल वेरी ब्रेवली विद शहाबुद्दीन गोरी के साथ बहुत ही ब्रेवली बैटल की, बट उसकी कोई प्रायर प्रिपरेशन नहीं थी, neither he did any prior preparation nor any took any help of other king. तो उसकी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान was not successful to win the battle, और उसकी वजह से क्या हुआ, हियर द दिल्ली पर से राजपूत का जो पावर है वो वहां पर खत्म हो गया, बिकॉज पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीटेड बाय द शहाबुद्दीन गोरी। और नाउ शहाबुद्दीन गोरी टुक दिल्ली, एंड उसकी वजह से वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में सभी चीजों में चेंजेस आया, बिकॉज फ्रॉम राजपूत एज टू नाउ मोहम्मदी गोरी। ओके, तो पूरी डायनास्टी चेंज हो गई, ओके, रूलर्स चेंज हो गए, तो बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी चेंजेस आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम, राइट। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव, यानी कि जब शहाबुद्दीन का डेथ हुई तो उसके बाद उसका जो स्लेव था, हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक है, he ascended the throne after the death of Shahabuddin. Okay, so because of that dynasty was also known as slave dynasty. Okay, and conspiring against each other instead of sacrifice. Now क्या हो रहा था कि धीरे धीरे आफ्टर दिल्ली सल्तनत को पाने के लिए, दिल्ली सल्तनत को जीतने के लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, और उसकी वजह से जो दिल्ली है
वो क्या किस में कन्वर्ट होगी, इन द ब्लड. Okay, so here is the change of power at Delhi. So these are, here we are at the end of this chapter. आभार.